Good morning, children. In last lecture, we have studied about Karmadharya Samas. Today, we are going to begin with the topic Bahuvrihi Samas. Now, read the following sentences. 1 number, Tikshna buddhihi janah sarvana arthana diya pashyati. 2 number, Bahumatsayah ayam yadah. 3rd number, Arjunah api jata harshah tai saha संलग्नः अभवत्. In all these above sentences, the underlined words are compound words, which is samas words. So here it is a bahuvrihi compound, because in one word it is describing 2-3 meanings. So it is a bahuvrihi samas. While parting this, जब उसको अलग करते हैं, then these compound words making these solution, यानी उसको विग्रह करते समय कुछ शब्द का हमें उपयोग करना पड़ता है, जिससे हम जान सकते हैं कि यह समास किसके बारे में कहा गया है. विग्रह यानी उसको सेपरेट करना. तीक्ष्ण बुद्धि ही, तीक्ष्णा बुद्धि यस्य स, यानी जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, शार्प माइंड है जिसका. बहुमत्स्यः बहवः मत्स्यः यस्मिनः स, यानी यहाँ पर हुज वेर यानी जिसका उसका, इस शब्द के साथ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं. यस्य यस्मिन यानी उसका जिसका, वहाँ, यहाँ, ये शब्द के द्वारा हम जान सकते हैं. तीक्ष्ण बुद्धि यस्य स, सो जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है. बहुमत्स्यः बहवः मत्स्यः यस्मिन् सः, जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं वहाँ. जाता हर्षः, जाता हर्ष यस्य स, यानी जिसको हर्ष हो रहा हो. These 4 words are used in each of the cases. See carefully all these words used in the dissolution vigrah of Bahuvrihi compound and you will understand that. First number, out of these parted 4 words, the compound has been made of only 2 words. So, in this kind of separation of word, you can come to know it is about whom they are going to speak. So it is not a first or second thing, it is indicating third thing. So from this sentence we can come to know about whom it is they are describing. बहुव्रीहि यानी उसका थोड़ा डिटेल में होता है, मगर उसका नाम क्लेरिफाई नहीं होता है. In this in the used 2 words of which compound has been made, the first case has been used similarly. Third number, another 2 words which are seen in Vigrah Vakya of Bahuvrihi compound only, except that they are not seen in the Vigrah Vakya of the other compound. Therefore, this has to be considered why these words are used only in Bahuvrihi compound and not in any other compound. Why? Because विग्रह वाक्य के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है यस्य, येन, सो दिस ऑल द साइन ऑफ अ बहुव्रीहि समास के, अगर उसको अलग करने से पता चलता है कि यह बहुव्रीहि समास कैसे हुआ, क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन है, शब्द को जो उसका विग्रह किया जाता है उसमें शब्द प्रयोग किया जाता है, वही बहुव्रीहि में यूज़ हो सकता है. नाउ नोटिंग दिस 3 मैटर्स वी हैव टू लर्न the process of Bahuvrihi compound. We have to remember some 3-4 sentences for that. 1 number, Bahuvrihi compound can be made of the words with multiple cases at one time together. Multiple cases यानी इसमें multiple case का उपयोग हो सकता है. It can be used multiple time in a one sentence together. Second number, as many cases of words are to be added in the compound, all of them will be in a first case. Third number, all the words assumed to be in the compound give up their own meaning and tell the meaning of another word, which I told you first. It is not speaking same thing in 2-3 words, but in third word means in another word, what first 2 words are about that means 2 शब्दों का तीसरे शब्द में उसका मीनिंग होता है, यानी 2 शब्द उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए होता है और तीसरे शब्द से पता चलता है कि ये किसके बारे में बता रहे हैं. सो it is telling about meaning of another word. For showing only
Such meaning of another word, addition of word like यस्य सह is used in the विग्रह वाक्य. यस्य सह और येन सह, ये सब शब्द प्रयोग से हम जान सकते हैं कि यह सेंटेंस को उसको विग्रह करके सीखते हैं. नाउ आई एम शोइंग यू मोर स्लाइड्स. बहुव्रीहि समास means attributive compound. So here I am going to give you some more example. From that you can understand which way we can write बहुव्रीहि समास. What is the pattern to write and understand बहुव्रीहि समास means attributive compound. जिस समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो. प्रधान यानी कोई पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पूर्व यानी पहले वाला और उत्तर पद या ना तो उसके बाद वाला यानी सेकंड वर्ड. अपितु कोई अन्य पदार्थ अभिष्ट होता है. अभिष्ट यानी किसी और पदार्थ के बारे में यह जानकारी देता है, यानी किसी तीसरी चीज़ के बारे में वह हमें बताता है. पद से समास होने के बाद किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होगा. जब आप यह पद समझेंगे तो आपको किसी तीसरी व्यक्ति की या तो तीसरी संज्ञा की जानकारी मिलेगी. बहुव्रीहि समास का विग्रह करने पर यत् का प्रयोग होता है. यत् और येन से और यस्य से आपको पता चलेगा कि उसका विग्रह करने में कौन कौन से शब्दों को हम उपयोग कर सकते हैं. पीतम अम्बरम यस्य सह. सो हियर पीतम अम्बरम यस्य सह यानी पीताम्बर या पीताम्बरः. सो हियर पीतम यानी पीला, अम्बरम यानी जो पीला वस्त्र पहनता है वह. सो इट इज़ अ विष्णु. दे आर टेलिंग अबाउट अ विष्णु. कौन किसके बारे में जो पीले वस्त्र को पहनता है वह विष्णु के बारे में वह चर्चा हो रही है. द्वौ पादौ यस्य सह. द्वौ यानी दो जिसके पाँव है, पादौ यानी लेग. सो हियर किसके दो पाँव होते हैं. सो इट इज़ अ जन यानी लोग जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसके होते हैं. पतित पत्रम यस्मात् सह. पतित पत्र यानी तरु, यानी कहाँ से पड़ता कहाँ से गिरता है तो पतित पत्रम यस्मात् सह यानी तरु से यानी वृक्ष से. पीतम दुग्धम येन सह. पीत दुग्ध यानी जो पीता है वह, यानी जो दूध पीता है तो वह है बालः यानी बालक. पीतम दुग्धम यया सा. सो हियर इन दिस टू पीतम दुग्धम येन सह और पीतम दुग्धम यया सा. यया सा इज अ word for which we are using for feminine words and येन सह for masculine. So here it can be changed पीता दुग्धा और बाला. फॉर मस्कुलाइन बाला और फॉर फेमिनाइन बाला. शुभम आननम यस्या सा यानी जो शुभ होता है, शुभानना यानी इट इज़ फॉर स्त्री. फॉर फेमिनाइन सा वी आर यूजिंग. नाउ हियर सम मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू. चंद्रः शेखरे यस्य सह. चंद्र यानी चांद, शेखरे यानी उसके शिखर पर, यस्य सह जिसके शिखर पर चंद्र है. तो आपके मन में कौन सा पिक्चर उभर कर आएगा. चंद्रशेखर. चंद्रशेखर. हु इज़ द चंद्रशेखर वी आर कॉलिंग. शिव. शिवः. सो जिसके सर पर चंद्र है, जिसके शिखर पर यानी टॉप ऑफ द हेड चंद्र है तो वो है शिव. तो यहाँ पर दो चीज़ें हम बोलते हैं और किसी तीसरी व्यक्ति या तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. खड्ग हस्ते यस्य सह. तो आप आंसर भी नहीं सोचोगे ना तो भी पता चल जाएगा. खड्ग या खड्ग मीन्स तलवार, स्वॉर्ड. हस्ते यानी हाथ में, यस्य सह जिसके हाथ में तलवार हो वह. तो वह खड्ग हस्ता मीन्स किसके हाथ में तलवार होती है. योद्धा जो लड़ाई लड़ने जाता है, जो युद्ध लड़ने जाता है उसके हाथ में तलवार होती है. चक्रम पाणो यस्य सह. चक्रपाणी यानी चक्रम यानी जो चक्र होता है, जो सुदर्शन चक्र होता है जिसके पास होता है वह, तो चक्रपाणी है. सो इट इज़ अ विष्णु. तो यहाँ पर इस प्रकार बहुव्रीहि समास के सेंटेंस को हम समझ सकते हैं
उसका जो उसको एनालाइज करके उसको डिटेल में जानकर जब हम सोचते हैं तो जो चित्र मन में उभर कर आता है वह उसका जवाब होता है। और यस्य सह और या ये नो ये सब शब्दों का प्रयोग करके हम बहुव्रीहि समास के बारे में जान सकते हैं। Here some more example is there. See some uses. फर्स्ट नंबर स्नेहपूर्ण दृष्टि ही कुमारः। तो स्नेहपूर्ण दृष्टि किसकी होती है? तो कुमार की, यानी जिसकी दृष्टि स्नेहपूर्ण होती है तो वह है कुमारः। और उसका विग्रह वाक्य क्या होगा? स्नेहपूर्ण दृष्टि यस्य सः, जिसकी दृष्टि स्नेहपूर्ण होती है वह है कुमारः। यानी 2-3 चीज़ें हम जो बोलते हैं सोचते हैं और वह किसी थर्ड चीज़ के बारे में इंडिकेट करती है। लब्ध पदः नीचः। द विग्रह वाक्य ऑफ दिस इज लब्धम पदम येन सह। गत रोगः, तो गत रोगः यस्य सह, तो उसका विग्रह वाक्य यही हुआ। और किसके बारे में यह बात कर रहे हैं? नरः। कृत बुद्धि, जिसकी बुद्धि बड़ी ही सुपीरियर है, जो बड़ी ही अद्भुत है, तो वह कौन है? कृता बुद्धिः यनः सह ऋषि। Here, in the first use the compound has been made of 2 words like snehapurna and drishti in the sentence. These 2 words are in a first case. Always think you have to keep in mind. So it should be in a first case only. These 2 words, after giving up their own meanings, which are snehapurna means the full of affection, full of love, and drishti means look, take the meaning of another word like kumarah. For showing the meaning of this another word, the proper form of yat pronoun here. The word yasya has been used in the vigrah vakya. विग्रह वाक्य यानी यस्य के शब्द, यस्य शब्द के प्रयोग से हम उसका विग्रह कर सकते हैं। जिसकी दृष्टि स्नेहपूर्ण है वह, तो वह कौन है? वह कुमारः। इन द सेम वे, in the use like labdha pada nichah, the compound has been made of 2 words labdham and padam. These 2 words are in a first case and have taken the meaning of another word like nichah. Thus, its vigrah vakya is labdham padam yena sah. In this way, bahuvrihi compound becomes an adjective. So, it is giving a proper word or proper sangya shabd milta hai. So, one kind of adjective word it is. Pitambara. What is the adjective of that sentences which is we have learned above? Pitambara Vishnuhu. In this way, in all the uses of bahuvrihi, the arrangement of compound has to be considered. As we have seen above, both the words used in bahuvrihi compound give the meaning of another word. And so, the word ending with bahuvrihi compound is used mostly as an adjective. क्योंकि अगर इसी से पता चलता है कि यह जो सेंटेंस विग्रह करके, जो एनलार्ज करके हमने यस्य के प्रयोग से जो सेंटेंस बनाया है वह किस एडजेक्टिव, किस संज्ञा के बारे में है, उसी की जानकारी मिलती है. सो इट कैन बी कॉल्ड बहुव्रीहि कंपाउंड मीन्स बहुव्रीहि समास. बिकॉज ऑफ दिस द वर्ड बहुव्रीहि, बिकॉज इट इज़ अ बहु यानी उसका बहुत सारा विग्रह होता है, 2-3 शब्दों में जिसका विग्रह होता है. सो दैट इज इट इज़ अ बहुव्रीहि कंपाउंड. इट हैज़ टू बी केप्ट अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ इट्स नाउन. बहुव्रीहि में क्या होता है, जो समस्त पद होते हैं, जो सारे पद होते हैं, उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं. तो उससे हम जान सकते हैं कि यह बहुव्रीहि है. उसके मैं 2-3 मोर एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ. गजानन यानी गज से आनंद वाला, तो वह कौन होता है, सोचने पर आपको पता चलेगा कि यह गणेश के बारे में होता है. चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, यानी जो 4 भुजाओं वाला है वह है विष्णु. त्रिलोचन यानी 3 आँखों वाले, तो वो कौन से होते हैं, आपके जो दिमाग में कौन सा पिक्चर उभर कर आया, शिव. यानी शिव के बारे में बात हो रही है. 10 कंठ यानी 10 सिरों वाले होते हैं, उसके 10 कंठ होते हैं, तो वह क्या होते हैं, रावण. 10 कंठ है वही, यानी जिसके 10 कंठ होते हैं. निशाचर यानी जो रात में घूमता है उसको निशाचर बोलते हैं. तो क्या उभर कर आपके दिमाग में पिक्चर आएगा, राक्षस. सो
This way we are making Bahuvri sentences. So it is so here, because of this the word of Bahuvri compound has to be kept according to the gender of its noun. So it goes on changing. This means that if the noun is of masculine gender, the word ending with Bahuvri compound has to be used in a masculine gender. If the noun is in feminine gender, the word ending with Bahuvri compound has to be used in the feminine, and if the noun is in neuter gender, the word ending with Bahuvri compound has also to be used in a neuter gender. So let's solve the exercise which you have to complete in a fair book. So question number 1, अद्योलिखितानां पदानां समास प्रकारं लिखत. शिला लिखितम. सो ये कौन सी विभक्ति हुई, ये कौन सा समास हुआ? इट इज अ सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास. देन नीति निपुणः सप्तमी तत्पुरुष समास. प्रत्युत्पन्नमति बहुव्रीहि समास. लब्ध विजयः बहुव्रीहि. प्रकृति निर्मिता तत्पुरुष. अधिगतत्वः बहुव्रीहि. नाउ सेकेंड नंबर, निम्नलिखितानि पदानि संयोज्य संयोग्य समासं विरचयत. सो तीक्ष्णतुंड. सो इट इज अ तीक्ष्णतुंड. ये न यानी जिसकी तीक्ष्ण तुंड होती है, तुंड यानी ट्रंक, तो किसके दांत तीक्ष्ण होते हैं, तो वो हुआ बहुव्रीहि समास. कृतकार्य बहुव्रीहि समास. न प्राप्त, अप्राप्त, इट इज अ नज तत्पुरुष यानी नकारात्मक तत्पुरुष समास. गंभीर जल बहुव्रीहि. उग्र स्वभाव यस्य सो, जिसका स्वभाव उग्र है वह, तो वो होता है बहुव्रीहि. तो यहाँ पर आपको शब्द के जो 2 टुकड़े होते हैं तब पता चल गया होगा कि ये बहुव्रीहि है या कर्मधारय है. नाउ थर्ड नंबर, क विभागम ख विभागेन सह संयोजयत. क एंड ख. 1 नंबर, भग्नदंता. सो भग्नदंता यस्य यानी जिसका दंत भग्न है वह क्या होता है? वह होता है बहुव्रीहि. दंता है, दंत होता तो यह होता मस्कुलिन, बट यहाँ पर बहुव्रीहि है. प्राप्त बुद्धि यानी बहुव्रीहि अगेन. परिवारजन, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष आएगा. भय क्रोधो. सो इतरेतर, जो लास्ट में आपने देखा कि धो को औ की मात्रा है तो उससे पता चल जाएगा. तो भय क्रोधो हो. सो इट इज अ इतरेतर द्वंद्व. महावृक्ष, कर्मधारय. वृक्ष तो है मगर महावृक्ष, सो इट इज अ कर्मधारय. So this exercise, this following questions we have solved just now, that you have to complete in your fair book. Thank you.